Hello guys, so here we are with the next topic that is basically upon the balancing. Okay, so if we talk about the balancing basically is a really very important topic of theory of machine. We are having an entire chapter in theory of machine based upon balancing. Okay, so what exactly is balancing? So balancing basically is a technique of correcting or eliminating the unwanted inertia forces. Clear? So please focus upon the fact that we are doing balancing. Why? Because we want to eliminate the unwanted inertia forces or the moments also, or the moments in the rotating as well as the reciprocating masses, and is achieved by changing the location of the mass center. Clear? Now what is the objective of the balancing? Why we are doing the balancing? We are just trying to make sure that the center of gravity of the system remains stationary during a complete revolution of the crankshaft. So we are trying to make sure that for the entire system, the center of gravity remains stationary during the complete revolution of the crankshaft. Secondly, why we are doing it, that the couple involved in acceleration of the different moving parts balance each other. Clear? So we are focused upon the forces as well as upon the couples also. Clear? That the couple involved in the acceleration also remain balanced for each moving part of the machine. Clear? Now why we need balancing, that is the main topic. Clear? So balancing basically is required because right now we are using lot of engines. Clear? We can say we are using right now a lot of engines or high speed machinery. Clear? And heavy duty engines we have been using in daily life. Clear? So these engines or high speed engines we can say, or the machines we can say, they have many rotating as well as reciprocating parts. Okay, so they have a lot of rotating parts we can say, as well as reciprocating parts also. They have a large amount of rotating parts. Clear? As well as reciprocating parts also. Reciprocating parts. Okay, so if we don't balance these rotating parts or reciprocating parts, clear, if they are not completely balanced, so it is a requirement that all these parts must be completely balanced. They must be completely balanced. They must be completely balanced. But if we are not able to balance them completely, we are going to face the drawbacks of this thing. Clear? What is going to be the drawback? If we are not able to balance the rotating as well as the rotating parts of the machine, there we are going to face unbalanced dynamic forces. So we are going to face unbalanced dynamic forces. Clear? These unbalanced dynamic forces are going to increase the load. They are going to increase the load as well as the stress on the parts of the machine. Clear? So they will increase the load, they will increase stresses on the bearings. Clear? At the end of it, they are going to produce dangerous vibrations also. So they will produce one more thing, that is dangerous vibrations are also produced because of these unbalanced forces. Okay, so all these things are not required. If we are facing all these issues in the problem, it means the masses are not properly balanced. तो ये जो आपके पास dangerous vibrations हैं, increase in stress है या फिर increase in load है, they can cause failure of the parts. Clear? Which can cause accidents also. तो हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है कि हमने अनबैलेंस फोर्सेस को बैलेंस करना है हमेशा. Clear? We have to make sure that they are completely balanced. Now next topic is, what is the causes of unbalance? कोज क्या है, आपके जो पार्ट्स है वो अनबैलेंस क्यों हैं? तो अगर हम कोज की बात करें, उसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है, दैट इन द डिज़ाइन ऑफ रोटेटिंग और मशीन पार्ट्स ऑफ द मशीन, वी आर टेकिंग एवरी केयर टू एलिमिनेट द आउट ऑफ बैलेंस. तो जब हम उनको बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि किसी भी केस में हमको आउट ऑफ बैलेंस या फिर कपल ऐसा ना जनरेट हो वहाँ पे.
क्लियर, विच कैन फर्दर गिव अस अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बट जितनी भी आप फिनिशिंग अच्छे से कर लें, क्लियर, स्टिल देर आर गोइंग टू बी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और उसका रीज़न क्या रहेगा? स्लाइट वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। अगर आप किसी चीज़ को बना रहे हो और उसकी डेंसिटी में वेरिएशन है विद इन द पार्ट, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग डेंसिटी है उसकी, तो वहाँ भी क्या आपके पास रहेगा? अनबैलेंस्ड फोर्सेस रहेंगी। सेकेंडली, आप कास्टिंग से बहुत से मशीन पार्ट्स को बनाते हैं। अगर कास्टिंग में क्या है, इनएक्यूरेसीज हैं, उसको आप प्रॉपरली बना नहीं पा रहे हो, जो कि यहाँ पे होंगी, तो कास्टिंग की इनएक्यूरेसीज भी आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस को प्रोड्यूस करती हैं। एट द एंड ऑफ इट वी हैव इनएक्यूरेसीज इन द मशीनिंग ऑफ द पार्ट्स। तो कास्टिंग करने के बाद हम कुछ पार्ट्स की मशीनिंग भी करते हैं या डायरेक्टली मशीनिंग करते हैं, तो मशीनिंग के बाद भी कुछ पार्ट्स में आपके पास अनबैलेंस मासेस जो हैं वो रहेंगे, विच कैन फर्दर गिव राइज टू अनबैलेंस फोर्सेस। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये क्या है? बेसिकली मेन कॉज हैं अनबैलेंस के। क्लियर, वेरिएशन इन द डेंसिटी एज वेल एज द इनएक्यूरेसी इन द कास्टिंग और इनएक्यूरेसी इन द मशीनिंग कैन गिव राइज टू अनबैलेंस फोर्सेस इन द मशीन। क्लियर, नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग। सो अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग की, क्लियर, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग। तो इसके बहुत से टाइप्स हैं, मेनली इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टैटिक बैलेंस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड डायनामिक बैलेंस। Okay, so we are going to start with the first one, static balance. It is a balance of the forces due to the action of gravity. Clear? तो इसमें हम क्या है, सिर्फ फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या ट्राई करते हैं? वी ट्राई टू मेक श्योर दैट समेशन ऑफ ऑल द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस which are acting on the body comes out to be equal to 0. Clear? So a body is said to be in static balance if the center of gravity is in the axis of rotation. तो अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करता है, हम क्या बोलते हैं? बॉडी किस में है? स्टैटिक बैलेंस में है। और इसमें हम ट्राई करते हैं फोर्सेस को बैलेंस करने का, विच आर देयर ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो वी ट्राई टू मेक श्योर दैट समेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बिकम्स इक्वल्स टू 0. क्लियर? सेकेंडली अगर मैं बात करता हूँ डायनामिक फोर्सेस की, तो वो बेसिकली क्या है? इट इज़ अ डायनामिक बैलेंस ड्यू टू द एक्शन ऑफ इनर्शिया फोर्सेज ओनली। तो इसमें हम फोकस करते हैं किसके ऊपर? इनर्शिया फोर्सेज के ऊपर। क्लियर? तो a body is said to be in dynamic balance when the resultant movement of the couple which involved in the acceleration of different parts is equal to 0. क्लियर? तो डायनामिक बैलेंस को अचीव करने की फर्स्ट कंडीशन क्या है? इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो वही है कि समेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा इक्वल टू क्या है? 0 आए, जो कि हमारी कंडीशन किसकी है? स्टैटिक बैलेंस की भी है। इसके अलावा जो इसकी दूसरी कंडीशन है वो क्या है? दैट समेशन ऑफ द मोमेंट्स और द कपल्स मस्ट आल्सो बी इक्वल टू 0. तो कपल्स भी आपके पास 0 आए, समेशन ऑफ कपल्स भी 0 आए, मोमेंट्स भी 0 आए और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी 0 आए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो क्या है? डायनामिक बैलेंस है। अगर सिर्फ फोर्सेस 0 आ रही हैं तो वो क्या है? स्टैटिक बैलेंस है। क्लियर? इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास बॉडी किस में है? इफ़ ऑल द मासेस, जिनको भी आप स्टडी कर रहे हो, इफ़ ऑल द मासेस आर इन द सेम प्लेन, if they are in the same plane, so if they are in the same plane obviously moment is going to be 0. तो उसमें हम क्या करते हैं? सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर कोई बॉडी या फिर मासेस सेम प्लेन में है, then we only need static balancing. Clear? But if the masses which are given to us, if the masses are in different plane, if the masses are in the different plane, then we have to satisfy these both conditions, and this is basically part of what? It is basically coming under dynamic balancing. तो अगर मासेस सेम प्लेन में है तो हम क्या करते हैं? स्टैटिक बैलेंसिंग करते हैं। अगर मासेस डिफरेंट प्लेन में है तो हम क्या करते हैं? डायनामिक बैलेंसिंग करते हैं। तो स्टैटिक फॉर द सेम प्लेन, डायनामिक फॉर द डिफरेंट प्लेन। इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड व्हाई बैलेंसिंग इज सो इम्पोर्टेंट। सो इसके मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं नोट्स में। फर्स्ट थिंग इज द फोर्स
द फोर्स कोज बाय द अनबैलेंस इंक्रीजेज द स्केल ऑफ द स्पीड। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपके पास प्रोड्यूस होती है वहाँ पे, अगर आप उसको चेक करो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, आपको मैंने आपको बता रखा है, एम वी स्केयर एम ओमेगा स्केयर आर। ओके, या हम सिंपल वर्ड में उसको हम बात करें जो इस तरह से होता है, वो एम ओमेगा स्केयर आर। ओके, तो अगर यहाँ से चेक करें कि जो आपके पास फोर्स आ रही है उसका रिलेशन क्या बन रहा है विद द स्पीड, तो वो क्या है, स्केयर है। तो वो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो आपके पास अनबैलेंस फोर्सेज आएंगी, दे आर फोर्सेज कोज बाय द अनबैलेंस इंक्रीजेज बाय द स्केयर ऑफ द स्पीड। तो अगर आप स्पीड को 2 टाइम्स कर रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपके पास है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही सवेयर कंडीशन है, इसलिए इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। सेकेंडली ही सेज दैट एज मशीन गेट्स बिगर एंड बिगर सो फास्टर द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्सेज इज मच मोर सवेयर। ऑब्वियसली जितनी बड़ी मशीन है, जितने हैवी आपके पास मशीन पार्ट्स हैं, उतना ही ज़्यादा आपके पास जो अनबैलेंस की कंडीशन है वो सवेयर हो जाएगी। सो बड़ी मशीन्स के लिए, बिगर मशीन्स के लिए बहुत ज़रूरी है उनको बैलेंस करना। सेकेंडली, थर्ड पॉइंट, अ लेवल ऑफ अनबैलेंस दैट इज एक्सेप्टेबल एट अ लो स्पीड। तो वो बेसिकली ये बोले कि अगर आपके पास कोई व्हीकल है या इंजन है, तो अगर वो लो स्पीड के ऊपर है, देन वी कैन से कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट है वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं जाएगा। मगर उसकी स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है, तो आपको पता है कि स्पीड का रिलेशन क्या है विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उन केसेस में देयर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमको उन फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाई स्पीड इंजन्स के लिए, हाई स्पीड व्हीकल्स के लिए जो अनबैलेंस फोर्सेज हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लो स्पीड के लिए अप टू सर्टन लेवल वी कैन एक्सेप्ट दैम। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन से मैकेनिकल पार्ट्स हैं, तो अगर मैं आपको बात करूं सिंपली, जितनी भी आपके पास इंजन की क्रैंक शाफ्ट हैं, इंजन क्रैंक शाफ्ट, ओके। अगर हम बात करें रोटर्स ऑफ कंप्रेसर, then we have turbine rotors, steam turbine rotors, clear, or centrifugal pumps also, centrifugal pumps। इन सारे ही मैकेनिकल कंपोनेंट्स में हम लोग अनबैलेंस की जो कंडीशन है वो फेस करते हैं, क्लियर। तो इनको बैलेंस करना क्या है, ज़रूरी है। तो मैकेनिकली इफ़ इसे क्लियर, तो मैकेनिकल की फॉर्म में इन चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। आप लोग गाड़ियों की बैलेंसिंग करवाते हो, आप लोग व्हील की बैलेंसिंग करवाते हो, तो बेसिकली यही है, जितनी भी अनबैलेंस फोर्सेस उसके अंदर है उनको हमको बैलेंस करना है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंसिंग। इन द नेक्स्ट क्लास I will discuss about some of the cases of balancing also. So please, if you like this video, please like the video, comment the video, and please share it with your friends also, and please subscribe my channel, that is Magno Receptor. Thank you very much.